Dear students, I, Professor Kavita Brahmankar, CO Department, NIT Polytechnic Nagpur, welcomes you back again to the online lecture series of subject Computer Networking and Data Communication. Today, we are going to cover point number 3.4 of Unit 3. Topic name is Synchronous and Asynchronous TDM. Learning outcomes. After watching this video, you will be able to draw the diagram of synchronous and asynchronous TDM, and you will be able to state the working principle of both the TDM types with example. Course outcome that is going to map is CO3. You will be able to maintain relevant transmission medium and modem for data transmission. Then program outcomes that are going to map are PO1. There will be improvement in your basic as well as electronics engineering knowledge. PO4, you will be able to perform various experiments using this knowledge, and you will be able to use various engineering tools like modem, cables and other hardware devices, and you will be test performance of that devices. Then PO6, with this knowledge you will be able to work on small projects or micro projects, and by doing this your oral, written as well as presentation skills are getting improved. Then PO7, whatever the knowledge you are taking here, that will be with you for lifetime. So PO7 is getting satisfied. Then prerequisite to this topic is you should know the concept of multiplexing, types of multiplexing and detailed knowledge of FDM, that is frequency division multiplexing. Then in last video we have seen there are two types of time division multiplexing. So first type is synchronous TDM and second one is asynchronous TDM. Now let us see one by one. So now we will see what is synchronous TDM. So synchronous TDM is a technique in which time slot is pre-assigned to every device. Synchronous TDM में हम particular time slot पहले ही पर्टिकुलर डिवाइस को असाइन करके रखते हैं. In synchronous TDM, each device is given some time slot irrespective of the fact that the device contains the data or not. किसी डिवाइस के पास अगर डेटा नहीं है सेंड करने के लिए, फिर भी हम उस डिवाइस को पहले ही टाइम स्लॉट असाइन करके रखते हैं. So if the device does not have any data, then the time slot will remain empty. So किसी डिवाइस के पास डेटा नहीं है फिर भी हम उसको टाइम स्लॉट असाइन करके रख रहे हैं, तो जो भी उसका स्लॉट है वो एम्प्टी ट्रांसमिट होगा, लेकिन वो ट्रांसमिट होगा किसी भी हालत में. ओके, सो इन दिस कंडीशन एम्प्टी टाइम स्लॉट विल बी ट्रांसमिटेड. इन सिंक्रोनस TDM, signals are sent in the form of frames. Time slot are organized in the form of frames. If a device does not have data for a particular time slot, then the empty slot will be transmitted. So, हम जो signals यहाँ पे send कर रहे हैं throughout the transmission medium, so time slot हम एक frame के अंदर organize करके रख रहे हैं. So, one frame contains number of time slots. So, particular फ्रेम में ऐसा हो सकता है कि किसी डिवाइस के लिए हमने टाइम स्लॉट असाइन किया है लेकिन उसके पास डेटा ही नहीं है सेंड करने के लिए, लेकिन फिर भी इस कंडीशन में वो एम्प्टी टाइम स्लॉट हम ट्रांसमिट करेंगे. सो द मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल्स ऑफ सिंक्रोनस TDM आर T1 मल्टीप्लेक्सिंग, ISDN मल्टीप्लेक्सिंग एंड सोनेट मल्टीप्लेक्सिंग. सो सपोज हमारे पास n डिवाइसेस हैं, so there are n slots in the frame. So now let us see this with one example or one diagram. So these are input signals. So हमारे पास S1 से लेकर Sn तक, ऐसे 1 to लेकर n तक input signals है. So इन particular signals को हम frame के अंदर particular time slot हम assign कर रहे हैं. So one frame contains n time slot. So अगर ये कोई डिवाइस है जिसके पास डेटा नहीं है, फिर भी ये खाली जो एम्प्टी टाइम स्लॉट है वो भी यहाँ पे ट्रांसमिट होने वाली है. सो यू कैन रिप्रेजेंट सिंक्रोनस TDM विद दिस डायग्राम. सो नाउ अगेन लेट अस टेक वन एग्जांपल. सो देयर आर 3 डिवाइसेस A, B and C. Then in the above figure the synchronous TDM technique is implemented. Each device is allocated with some time slot. सो पर्टिकुलर डिवाइस के लिए हमने टाइम स्लॉट असाइन कर दिया है.
The time slot are transmitted irrespective of whether the sender has data to send or not. So देखिए यहाँ पे फर्स्ट फ्रेम में हमने जो टाइम स्लॉट्स असाइन किए थे तो ए बी और सी तीनों के पास डेटा था, तो वो डेटा हमने ट्रांसमिट किया। लेकिन अब सेकेंड फ्रेम में सिर्फ ए और बी के पास डेटा है सेंड करने के लिए। अब सी के पास कुछ डेटा नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उसको टाइम स्लॉट जो है वो असाइन करके रख दिया है और एम्प्टी स्लॉट यहाँ पे ट्रांसमिट हुई है। देन थर्ड फ्रेम में फिर बी और सी के पास कोई डेटा नहीं है, फिर भी एम्प्टी टाइम स्लॉट हमने यहाँ पे ट्रांसमिट कर दिया है। तो इस डायग्राम से हम ये देख सकते हैं कि जो हमारे बैंडविड्थ है हमारे ट्रांसमिशन मीडियम की वो फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो रही है, क्योंकि कुछ टाइम स्लॉट से वो एम्प्टी ट्रांसमिट हो रही है। सो हम बोल सकते हैं कि डिसएडवांटेज ऑफ एसटीडीएम, सिंक्रोनस टीडीएम, इज the capacity of the channel is not fully utilized as empty slots are transmitted. Okay, जिसके पास जिस फ्रेम के पास या जिस डिवाइस के पास डेटा नहीं है फिर भी उस डिवाइसेस के लिए हम टाइम स्लॉट्स असाइन कर रहे हैं और ट्रांसमिट कर रहे हैं, मीन्स हमारे चैनल की कैपेसिटी पूरी फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो रही है। सो इन फिगर द फ्रेम इज कंप्लीटली फिल्ड बट इन द लास्ट टू फ्रेम्स, पहली फ्रेम कंप्लीटली फिल्ड है बट लास्ट टू फ्रेम्स अगर देखते हैं हम तो उनमें कुछ टाइम स्लॉट जो है वो हमको एम्प्टी दिखाई दे रहे हैं। सो वी कैन से दैट द कैपेसिटी इज नॉट अगेन फुल्ली और इफिशिएंटली यूज्ड। देन द स्पीड ऑफ द ट्रांसमिशन मीडियम शुड बी ग्रेटर देन द टोटल स्पीड ऑफ इनपुट लाइन। तो ये जो भी हमारे पास ट्रांसमिशन मीडियम है उसका जो कैपेसिटी या स्पीड है दैट शुड बी ग्रेटर देन टोटल नंबर ऑफ इनपुट लाइन्स। जितने भी हमारे पास इनपुट लाइन्स है उससे ये ट्रांसमिशन मीडियम की कैपेसिटी हो दैट शुड बी ग्रेटर। सो इसको ओवरकम करने के लिए जो हमारा फुल्ली इफिशिएंटली हम यूज नहीं कर पाते थे चैनल की कैपेसिटी, उसको हम ओवरकम कर सकते हैं बाय यूजिंग असिंक्रोनस टीडीएम। सो लेट अस नाउ सी असिंक्रोनस टीडीएम। Asynchronous TDM is also known as statistical TDM. Asynchronous TDM is a technique in which time slots are not fixed as in the case of synchronous TDM. जैसे हम synchronous TDM में पहले ही डिवाइसेस को असाइन करके रखते थे टाइम स्लॉट, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। टाइम स्लॉट्स आर allocated to those devices which have the data to send. जिस डिवाइसेस के पास करंटली एक्टिवली डेटा है सेंड करने के लिए उसी डिवाइसेस को हम टाइम स्लॉट्स असाइन करेंगे। Therefore, we can say that asynchronous TDM transmit only the data from the active workstations. Means currently जो भी active workstations है, जो भी active devices है, उनके लिए ही हम slots असाइन करेंगे और डेटा ट्रांसमिट करेंगे। Means we can say that it dynamically allocates the time slots to the devices. Means dynamically currently जो भी active है उसको हम dynamically टाइम स्लॉट जो है वो असाइन कर रहे हैं। इन asynchronous TDM again the total speed of input lines can be greater than the capacity of channel. अब यहाँ पे थोड़ा अपोजिट है, वहां पे जैसे सिंक्रोनस TDM में हमने क्या देखा था कि चैनल की जो कैपेसिटी है दैट शुड बी ग्रेटर देन इनपुट लाइंस। ओके, बट यहाँ पे रिवर्स है। सो टोटल स्पीड ऑफ इनपुट लाइंस, अब इनपुट लाइंस का स्पीड जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन कैपेसिटी ऑफ चैनल। तो ये कॉन्ट्रास्ट है दोनों के बीच में। सो asynchronous TDM multiplexer accepts the incoming data stream and creates a frame that contains only data with no empty slot. तो asynchronous TDM क्या करेगा कि जिनके पास डेटा है, जिस डिवाइसेस के पास डेटा है वही टाइम स्लॉट एक्सेप्ट करेगा, उनके लिए एक फ्रेम क्रिएट करेगा और उनको ही ट्रांसमिट करेगा और उसमें एक भी एम्प्टी स्लॉट नहीं होगी। सो asynchronous TDM, each slot contains an address part that identifies the source of the data. So जब भी हम फ्रेम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं या टाइम स्लॉट क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें दो फील्ड्स होंगे, एक तो डेटा पार्ट और एक तो एड्रेस पार्ट। सेंडर का ये यहाँ पे सेंडर का एड्रेस रहेगा, मीन्स ये सेंडर का आइडेंटिफिकेशन देगा हमको कि कौन डेटा सेंड कर रहा है और यहाँ पे हमारा एक्चुअल डेटा रहेगा। सो नाउ लेट अस सी दिस विथ वन एग्जांपल। हमारे पास ए बी सी डी ये 4 वर्क स्टेशन है या 4 डिवाइसेस है, जिसमें ए के पास डेटा है सेंड करने के लिए, बी फिलहाल आइडल है, इसके पास कुछ भी डेटा नहीं है, सी के पास डेटा है और डी के पास डेटा नहीं है सेंड करने के लिए। तो इसको हमने देखिए कैसे किया है, पहले ए ने डेटा ट्रांसमिट किया, फिर बी
के पास डेटा नहीं है इसलिए सी ने इमीडिएटली ट्रांसफर किया डेटा, देन ए ने ट्रांसफर किया, देन फिर से सी ने ट्रांसफर किया। सो इस तरह से जिनके पास डेटा है, डेटा स्ट्रीम अवेलेबल है सेंड करने के लिए, वही एक्टिव डिवाइसेस यहाँ पे टाइम स्लॉट जो है वो उनको असाइन होगी और डेटा ट्रांसमिट करेंगे। सो अब देखेंगे कि उसका उनका जो फ्रेम फॉर्मेट है वो किस तरह से रहेगा। So there are 4 devices but only 2 devices are sending the data, means A and C ये दोनों के पास डेटा है सेंड करने के लिए। So therefore the data of A and C are only transmitted to the transmission line। तो अभी हमने देखा है कि सिर्फ A और C ने ट्रांसमिशन लाइन पे, ट्रांसमिशन मीडियम पे डेटा सेंड किया है। तो इनका फ्रेम फॉर्मेट इस तरह से रहेगा, जैसे कि हमने देखा है कि फ्रेम 2 पार्ट में डिवाइड होगी, एड्रेस और उसका डेटा। सो ए ट्रांसमिट कर रहा है अगर, सो एड्रेस ऑफ ए देन डेटा ऑफ ए, तो ये एक हमारी फ्रेम हो गई। देन सेकंड सी ने ट्रांसमिट किया डेटा, सो एड्रेस ऑफ सी एंड डेटा ऑफ सी। देन फिर से ए ने ट्रांसमिट किया, सो एड्रेस ऑफ ए एंड डेटा ऑफ ए। तो इस तरह से जो फ्रेम्स है इस तरह से ट्रांसमिशन लाइन पे ऑर्गेनाइज हो गए और ट्रांसमिट हो गए। सो दिस इज ऑल अबाउट asynchronous TDM. Now let us summarize today's lecture. Dear students, today we have seen what is synchronous TDM and what is asynchronous TDM, and we have seen differences in that. And we have also seen the diagram showing working principle of both the types. So synchronous TDM में प्री असाइंड होता है टाइम स्लॉट डिवाइसेस के लिए और एम्प्टी टाइम स्लॉट वी कैन ट्रांसमिट। सो फुल्ली चैनल का यूटिलाइजेशन नहीं होता है। और असिंक्रोनस TDM में हम जिस डिवाइसेस के पास डेटा है सेंड करने के लिए उसी को टाइम स्लॉट हम असाइन करते हैं, मीन्स डायनामिकली असाइनमेंट होता है टाइम स्लॉट्स का। और सिंक्रोनस TDM से असिंक्रोनस TDM में हम चैनल की कैपेसिटी है वो इफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। देन असिंक्रोनस TDM में हमने फ्रेम का फॉर्मेट देखा जिसमें जो भी सेंडर है उसका एड्रेस पार्ट रहेगा और डेटा पार्ट रहेगा। देन सिंक्रोनस TDM में हमने देखा था कि चैनल की जो कैपेसिटी है दैट शुड बी ग्रेटर देन टोटल स्पीड ऑफ इनपुट लाइन, बट इट इज रिवर्स और इट इज जस्ट अपोजिट इन असिंक्रोनस TDM। तो असिंक्रोनस TDM में हमने देखा कि जो उन इनपुट लाइन से उनकी कैपेसिटी शुड बी ग्रेटर देन कैपेसिटी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। सो ऑल these are the differences between synchronous and asynchronous TDM. So dear students, I hope you might have understood today's lecture, and if not understood then watch the videos frequently, and still you have any queries then feel free to reach out on the following email ID. Thank you for watching the video. Keep learning and enjoy learning. Thank you so much.